हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग का नया सीरीज। इस सीरीज में हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड डिफरेंट कंसेप्ट्स की। बात करेंगे व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग। व्हेन वी टॉक अबाउट केमिकल बॉन्डिंग, बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग refers to that set of theories or principle. Chemical bonding is basically set of theories or principles that governs two things. First one is about structure and second one is about stability. So we can say chemical bonding is the set of theories or principles which are governing basically structure and stability of a compound. So आगे हम बढ़ते हैं एंड द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड हम किसको बोल सकते हैं? तो केमिकल बॉन्ड इज द नेम ऑफ अट्रैक्शन फोर्स। बेसिकली केमिकल बॉन्ड इज द नेम गिवन टू अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टिंग बिटवीन एटम, मॉलिक्यूल और आयन टू फॉर्म स्टेबल कंपाउंड्स. So chemical bond, I can say chemical bond is the name for force of attraction that exists between atoms, that exist between molecules, that exist between ions to form something called stable compounds. Now the very obvious question is, why do atoms form compounds to form stable compound? So chemical bond की अगर बात करें, chemical bond उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम है जो एटम्स के बीच में एग्जिस्ट करेंगे, मॉलिक्यूल के बीच में एग्जिस्ट कर सकते हैं, आयंस के बीच में एग्जिस्ट कर सकते हैं। और ये फोर्स एग्जिस्ट इसलिए करते हैं सो दैट दे कैन फॉर्म स्टेबल कंपाउंड्स. द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू एटम्स फॉर्म बॉन्ड? सो ऑब्वियस आंसर टू दिस क्वेश्चन इज any atom, molecule or ion, they form bond to become stable. अब मेरा सवाल ये है कि एटम कैसे स्टेबल हो सकते हैं? The very first question was what is a bond? तो bond is the name of attraction force existing between atoms, molecules, ions to form stable compounds. Now the question is why do atoms will form bond? The very first question is atoms form bonds to become more and more stable. Now the question is how this stability comes for an atom. So there are two things. First one is potential energy loss and the second one was initially explained by Lewis octet rule. However, this rule failed for certain molecules. But let us come to the very first point, that is atoms can gain stability by lowering down of their potential energy. Atoms can gain stability by lowering down their potential energy. Now the question is, what is the relation between potential energy and stability? How atoms can lower down their potential energy? So there is an inverse relation between potential energy and stability. That is, more stable molecules are the ones which are having lower value of potential energy. Now the obvious question is कि atoms अपनी potential energy को lower कैसे करते हैं? So let us take an example of a molecule. Let's say we are having a molecule AB which is formed by two atoms A and B, and we shall examine all the forces operating between these two atoms. Or let us say this is our atom A and then this is our atom B. This atom A and B, they are approaching each other to form a bond. So जब ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहे होंगे, कौन सा फोर्स ऑपरेट होगा हम अभी देखते हैं. तो मान लो एटम A के लिए ये न्यूक्लियस, एटम B का ये न्यूक्लियस. सो अगर मैं लिखूं वी हैव न्यूक्लियस ऑफ A, दिस इज इलेक्ट्रॉन ऑफ A, दिस इज इलेक्ट्रॉन ऑफ B. तो यहाँ जो फोर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो कौन कौन से कर रहे हैं? दिस इज न्यूक्लियस ऑफ B. तो अगर मैं फोर्स की बात करूं तो यहाँ पेयर ऑफ फोर्सेज एग्जिस्ट करेंगे. लाइक चार्जेज के बीच में रिपल्सन होगी, अनलाइक चार्जेज के बीच में अट्रैक्शन होगी.
अगर मैं बात करूं तो यहाँ न्यूक्लियस ऑफ ए और न्यूक्लियस ऑफ बी, इनके बीच में होगा रिपल्सन, वेयर एज इलेक्ट्रॉन ऑफ ए एंड न्यूक्लियस ऑफ बी विल हैव अट्रैक्शन. सिमिलरली इलेक्ट्रॉन ऑफ ए एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ बी विल हैव रिपल्सन. न्यूक्लियस ऑफ A and electron of B will have attraction. Electron of A and nucleus of B will have attraction. So मैं इन forces को दिखाता हूं, तो देखते हैं. First one is repulsion that is existing between electron of A and electron of B. दूसरा है फिर से एक repulsive force है nucleus of A और nucleus of B के बीच में. At the same time हमारे पास attractive forces भी exist कर रही होंगी और वो होगा इलेक्ट्रॉन ऑफ ए एंड न्यूक्लियस ऑफ बी के बीच में. दूसरा जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो होगा न्यूक्लियस ऑफ ए एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ बी. सो वी हैव अ पेयर ऑफ फोर्स, द अट्रैक्टिव फोर्सेज एंड द रिपल्सिव फोर्सेज. तो अगर मैं लिखूं अट्रैक्टिव फोर्सेज, बेसिकली आप मुझे बताओगे, अगर मैं अट्रैक्टिव फोर्सेज की बात करूं तो ये एग्जिस्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन ऑफ ए और न्यूक्लियस ऑफ बी के बीच में, या मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रॉन ऑफ बी और न्यूक्लियस ऑफ ए के बीच में. So this is basically the net attractive force. तो यहाँ मैंने लिखा attractive force and this is the net attractive force. अपने पास repulsive forces भी exist करेंगे और ये जो repulsive forces exist करेंगे ये होगा इलेक्ट्रॉन ऑफ A, इलेक्ट्रॉन ऑफ B के बीच में, ये न्यूक्लियस ऑफ A एंड न्यूक्लियस ऑफ B के बीच में. This is net repulsive force. So we have two types of force. First one is attractive force and then we have repulsive force. तो जब कभी ऐसा हो जाए मैग्नीट्यूड वाइज नेट अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट्स ओवर नेट रिपल्सिव फोर्स, तो ऐसे केस में हम बोलते हैं बॉन्डिंग कंडीशन. तो बॉन्डिंग कंडीशन इज द कंडीशन वेयर नेट अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट्स ओवर नेट रिपल्सिव फोर्स. और अगर हम बॉन्डिंग कंडीशन पे बात करें तो यहाँ एक चीज को समझना बहुत जरूरी है कि कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है एंड बॉन्ड डिसोसिएशन के दौरान एनर्जी हमें देना होता है. दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस वेयर एज द डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड इज क्वाइट एन एंडोथर्मिक प्रोसेस. तो अभी हम लेंगे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, दैट इज अ केस स्टडी. हम केस स्टडी करेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में कैसे बनता है. तो सिंस यहाँ दो पॉइंट हमें समझना होगा. पहली बात ये कि फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड, इसके लिए डेल्टा एच निगेटिव होता है. डेल्टा एच निगेटिव, दैट इज दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर. सिमिलरली अगर मैं बात करूं ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन, दिस प्रोसेस has to be endothermic, that is delta H is positive. इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस और एंडोथर्मिक प्रोसेस को ग्राफिकली अगर हम रिप्रेजेंट करें तो आई कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस प्रोसेस. अगर ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो जाएगी, दैट इज डेल्टा एच विल बी नेगेटिव. सो दिस इज द केस. ऑन वाई एक्सिस आई एम शोइंग एनर्जी, दैट इज एनर्जी प्रोफाइल. ऑन एक्स एक्सिस व्हाट वी से इज रिएक्शन प्रोफाइल और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन. सो दिस इज द केस इन बॉन्ड फॉर्मेशन. सो मैं आपको एक दूसरे केस के बारे में बताऊं कि जब वो बॉन्ड डिसोसिएशन होएगा, जब कोई बॉन्ड डिसोसिएट करे तो हम बोल सकते हैं दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक. और यहाँ ऐसा होता है एंडोथर्मिक में जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगी. और आई कैन राइट इट लाइक दिस एनर्जी इज बेसिकली पॉजिटिव, डेल्टा एच इज पॉजिटिव. दैट मीन्स द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक. ऑन वाई एक्सिस दिस इज अगेन एनर्जी प्रोफाइल. ऑन एक्स एक्सिस वी हैव रिएक्शन प्रोफाइल. सो up till now what we have concluded is a pair of forces are existing when two atoms they try to come close towards each other. The attractive force and the repulsive force. Attractive force are existing between unlike charges and repulsive forces they are existing between like charges. When the magnitude of net attractive force dominates over net repulsive force, what we say is
बॉन्डिंग हो गई, दैट इज फॉर अ बॉन्डिंग कंडीशन अट्रैक्टिव फोर्स हैज टू डोमिनेट ओवर दिस रिपल्सिव फोर्स. नाउ लेट मी एक्सप्लेन द केस ऑफ हाइड्रोजन molecule, that is the formation of H2 molecule. So we are having this case, let's say हमारे पास है ये एक हाइड्रोजन एटम एंड दिस इज सेकेंड हाइड्रोजन एटम. हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम है एंड दिस हाइड्रोजन एटम when they are approaching each other, तो we shall discuss about its potential energy. Let's say R इक्वल्स इन्फिनिटी. जब दो हाइड्रोजन एटम इन्फिनिटी पे होंगे तो इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी होगी जीरो. क्यों? क्योंकि नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज एग्जिस्टिंग एट इन्फिनिटी. बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी इज द नेम फॉर इंटरेक्शन एनर्जी एग्जिस्टिंग बिटवीन एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस. सो एट इनफाइनाइट डिस्टेंस दिस पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो. नाउ लेट्स से हमारे पास दो केस बनते हैं. एक केस बनता है अट्रैक्टिव फोर्स का, एक केस बनता है रिपल्सिव फोर्स का. तो हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी कर्व्स. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं पोटेंशियल एनर्जी कर्व. हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी कर्व बिटवीन लाइक चार्जेस, दैट इज अगर हम बात करें तो वी आर गोइंग टू डिस्कस पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर रिपल्सिव फोर्सेज, दैट इज यू रिपल्सिव, दैट इज force existing between like charges and I can write it like K Q1 Q2 by R. इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे मैं R को इंक्रीज, जैसे जैसे दो एटम एक दूसरे को अप्रोच करेंगे ये रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज करता चला जाएगा. जैसे जैसे दो एटम एक दूसरे को इंक्रीज करेंगे as R decreases U repulsive goes on increasing, that is potential energy increases as two atoms start approaching each other. तो इसके लिए अगर मैं कर्व बनाऊं जहां Y पे मैंने रिप्रेजेंट करा पोटेंशियल एनर्जी को, लेट अस से मैंने Y पे रिप्रेजेंट करा पोटेंशियल एनर्जी को और X पे मैंने रिप्रेजेंट करा R को. R इज द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई ऑफ H एटम्स. तो बेसिकली R में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को बोल रहा हूं और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब इनके न्यूक्लियस के बीच की दूरी जो है, दिस इज व्हाट आई से R, दिस इज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस. सो व्हेन टू एटम्स दे आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर, तो रिपल्सिव फोर्सेज के केस में आई कैन राइट यू रिपल्सिव एज K Q1 Q2 by R. As R decreases, U repulsive increases. That is the magnitude of potential energy goes on increasing as these two atoms start approaching each other. ऐसे केस में जब इनका डायग्राम, अगर मैं बात करूं इनके डायग्राम की, तो ये डायग्राम कुछ ऐसा होगा. That is जब R इन्फिनिटी था तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है एंड एज R डिक्रीजेज पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज. तो ये है रिपल्सिव फोर्सेज का डायग्राम. तो मैं एक रिपल्सिव फोर्सेज के बारे में बात करी, फिर मैं बात करता हूं अगर अट्रैक्टिव फोर्सेज होते तो क्या होता. तो अट्रैक्टिव फोर्सेज के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेट मी से यू अट्रैक्टिव फोर्स एंड आई कैन राइट फॉर यू अट्रैक्टिव फोर्स, ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी अट्रैक्टिव फोर्सेज की ये होगी K Q1 Q2 बाई R. मैग्नीट्यूड वाइज ये सेम होगा जो लास्ट केस में होता था. मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों ही सेम होंगे बट साइन यहाँ निगेटिव होगा. दिस निगेटिव साइन सिंपली इंडिकेट्स द फोर्स इज बीइंग अट्रैक्टिव इन नेचर. अब यहाँ अगर हम देखें तो व्हाट वी कैन कंक्लूड एज R इंक्रीजेज, U की वैल्यू इंक्रीजेज but in negative direction, that is when two atoms start approaching each other. जब अट्रैक्टिव फोर्सेज का केस होगा, जब अनलाइक चार्जेस एक दूसरे के करीब आएंगे तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में. तो अगर मैं इसके डायग्राम को रिप्रेजेंट करूं, इसके डायग्राम को XY कर्व पे रिप्रेजेंट करूं, तो आई कैन राइट इट लाइक X पे मैंने दिखाया R, Y पे मैंने दिखाया पोटेंशियल एनर्जी. इन्फिनिटी पे ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जब R टेंड्स टू इन्फिनिटी, U विल टेंड टू जीरो. लेकिन जैसे जैसे दो एटम एक दूसरे के करीब आएंगे तो अट्रैक्टिव फोर्सेज इंक्रीज करेगी और ऐसे केस में ये जीरो से लेते हुए ये इंक्रीज करता चला गया.
तो दिस इज द कर्व फॉर पोटेंशियल एनर्जी फॉर अट्रैक्टिव फोर्सेज। तो ये वो केस था जब हमने रिपल्सिव फोर्सेज की बात करी, ये वो केस था जब हमने अट्रैक्टिव फोर्सेज की बात करी। तो मेरा सवाल है नेट पोटेंशियल एनर्जी कितना लग रहा होगा। तो आई कैन राइट इट लाइक यू नेट इज बेसिकली यू ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेज, यू ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेज एंड यू ड्यू टू रिपल्सिव फोर्सेज। तो ये मैं लिख सकता हूं u ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेज इज माइनस के Q1 Q2 अपॉन R एंड u ड्यू टू रिपल्सिव फोर्सेज आई कैन राइट के Q1 Q2 बाई R। अब यहां अगर ऐसा होता तो नेट पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती, लेकिन एक्चुअल में नेट पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव आती है। ऐसा इसलिए होता है कि ये R ना होके एक्चुअल इक्वेशन में R की पावर n होती है। इस चीज को सबसे पहले बोर्ड ने ऑब्जर्व करा और इस इक्वेशन को हम बोलते बॉर्न-लैंडे इक्वेशन। यहां जो n है, द वैल्यू ऑफ n इज ग्रेटर देन 1 एंड n इज नोन एज बॉर्न-लैंडे कांस्टेंट। सो देख सकते हैं हम यहाँ पे n की वैल्यू जब 1 से ज्यादा होगी, n की वैल्यू 1 से जब ज्यादा होगी तो ओवरऑल ये वैल्यू स्मॉल होगी और टोटल में जो यूनिट की वैल्यू होगी, टोटल में यूनिट विल बी नेगेटिव। नेगेटिव साइन सिंपली इंप्लाइज द बॉन्डिंग कंडीशन। तो बेसिकली हमने देखा अट्रैक्टिव फोर्सेज के लिए, हमने डायग्राम देखा रिपल्सिव फोर्सेज के लिए। दिस इज द डायग्राम फॉर अट्रैक्टिव फोर्स एंड दिस इज द डायग्राम फॉर रिपल्सिव फोर्स। हम एक काम करेंगे, हम यूनिट का डायग्राम बनाएंगे बाय सुपर इम्पोजिंग दिस टू डायग्राम्स, दिस टू प्लॉट्स। तो अगर हमने नेट पोटेंशियल एनर्जी का कर्व बनाना है तो नेट पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैं लिख सकता हूं ऑन वाई एक्सिस आई एम रिप्रेजेंटिंग यू नेट एंड ऑन एक्स एक्सिस आई एम अगेन रिप्रेजेंटिंग आर। दिस इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ यू नेट। तो पहली बार मैं दोनों ग्राफ को बताऊंगा अट्रैक्टिव रिपल्सिव के लिए, फिर मैं सुपरपोज्ड ग्राफ की बात करूंगा। सो अपने पास दो ग्राफ आए थे, एक ग्राफ वन ग्राफ व्हाट this is the first graph we got for repulsive forces, this was for u repulsive, then we had the graph for the attractive forces and it was like this curve, this was the curve for u attractive। इन दो ग्राफ को हम सुपर इम्पोज करें तो एक्चुअल कुछ कर्व ऐसा आता। तो दिस इज द कर्व फॉर यूनिट। जब हमने बात करी रिपल्सिव फोर्सेज की, जब हमने बात करी अट्रैक्टिव फोर्सेज की, तो इन दोनों को सुपर इम्पोज करके जो कर्व आया यूनिट का कुछ ऐसा आया। तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो हम बात करेंगे इस कर्व को, और इस कर्व को हम जो बोलते हैं, इस कर्व को हम बोलते हैं मोर्स डायग्राम। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू लर्न मोर्स डायग्राम। तो इस मोर्स डायग्राम इज बेसिकली सुपर इम्पोज्ड कर्व ऑफ बोथ अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव फोर्स। जहां हम वाई पे दिखा रहे होंगे नेट पोटेंशियल एनर्जी को, दैट इज यू नेट, और डायग्राम इनका कुछ ऐसा आ रहा है। अब इस डायग्राम में हम समझ सकते हैं, जब आर इन वाई एक्स एक्सिस पे हमने आर दिखाया, R इज बेसिकली इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। जब R इंफिनिटी को टेंड करेगा पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे यहां से अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करेगी, और ये वो पॉइंट दिखा रहा होगा जहां पे अट्रैक्टिव फोर्सेज रिपल्सिव फोर्सेज बराबर हो जाएंगे। मतलब ये सपोज करो मैंने 3 रीजन इंडिकेट करे हैं, और दिस इज रीजन 1, this is a region 2 and this is third region. So basically this, for this region I can say if attractive dominates over if repulsive. For this point I can say if attractive is equal to if repulsive, और यहाँ पे एक बार फिर से if repulsive is greater than if attractive। बेसिकली यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट को देखें तो इस पॉइंट के लिए u नेट की वैल्यू मिनिमम होगी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी हैज अ मिनिमम वैल्यू, एंड दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स बॉन्डिंग पॉइंट, दैट इज दिस इज द पॉइंट व्हिच इज एट इक्विलिब्रियम। जब अट्रैक्टिव फोर्सेज रिपल्सिव फोर्सेज दोनों की वैल्यू बराबर होगी
और इस पॉइंट को मैं बोल सकता हूँ बॉन्डिंग पोजीशन। इस पॉइंट पे इनके बीच का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगा दिस इज सोन बाई n एंड दिस L इज व्हाट वी कॉल बॉन्ड लेंथ। और ये जो वैल्यू यहां दिखेगी बॉन्डिंग कंडीशन के कॉरेस्पॉन्डिंग, ये एनर्जी इज बेसिकली बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, दैट इज BE, डेल्टा H BE, बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी। इसके ऊपर मैं बात करूं तो यहाँ पे इफ रिपल्सिव ज्यादा होगा अट्रैक्टिव से, इसलिए U की वैल्यू है पॉजिटिव। अब इस कर्व के डिफरेंट पॉइंट्स के बारे में हमने चर्चा करी। हमने इस कर्व के बारे में मैं आपको फिर से समझाऊं क्या क्या हुआ। जब दोनों एटम, हाइड्रोजन के दोनों एटम, दे वेयर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, पोटेंशियल एनर्जी उस टाइम पे 0 थी। जब दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे तो अट्रैक्टिव फोर्सेज स्टार्ट्स डोमिनेटिंग ओवर रिपल्सिव फोर्सेज। देयर इज अ सर्टेन मिनिमम डिस्टेंस बियॉन्ड व्हिच टू एटम्स कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। और इस मिनिमम डिस्टेंस पे अट्रैक्टिव फोर्स की जो वैल्यू होगी और जो रिपल्सिव फोर्स की वैल्यू होगी, ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएगी। तब यहां हम बोलते हैं बॉन्डिंग कंडीशन, दैट इज ये वो कंडीशन है इक्विलिब्रियम पे जब अट्रैक्टिव रिपल्सिव बराबर होंगी तब यहां बॉन्डिंग होगा। इसके बियॉन्ड अगर दो एटम एक दूसरे के करीब जाएंगे तो न्यूक्लियस रिपल्सन होगी और इस रिपल्सन के कारण पोटेंशियल एनर्जी रेज हो जाता है। तो मैं आपको जैसे बताऊं, बेसिकली L इज व्हेन टू एटम्स स्टार्ट अप्रोचिंग ईच अदर। जैसे मान लो दो एटम है हमारे और ये सपोज करो दिस इज द केस फॉर फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। तो इस टाइम पे दोनों के बीच का जो न्यूक्लियर डिस्टेंस है दिस इज डिनोटेड बाय बॉन्ड लेंथ। टू एटम्स कैन नॉट सरपास ईच अदर बियॉन्ड दिस बॉन्ड लेंथ। अगर इस बॉन्ड लेंथ के बियॉन्ड एक दूसरे के करीब जाएंगे तो रिपल्सिव फोर्सेज एक बार फिर से डोमिनेट करेंगी और रिपल्सिव फोर्सेज जैसे इस ग्राफ में दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स इक्विलिब्रियम कंडीशन, बॉन्ड लेंथ कंडीशन। लेकिन इसके बियॉन्ड इस ग्राफ में ये जो लाइन दिख रही है बेसिकली दिस लाइन रिप्रेजेंट्स आवर बॉन्ड लेंथ। अगर इसके बियॉन्ड हम एक दूसरे के करीब जाएंगे, दूसरे एटम एक दूसरे के करीब जाएंगे तो हम बोल सकते हैं रिपल्सिव फोर्सेज इंक्रीजेज और ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। चलिए फिर हम करते हैं कुछ शानदार क्वेश्चन आज के कंसेप्ट्स पे। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ H2 मॉलिक्यूल। इस ग्राफ में आपको 3 पॉइंट दिखाए गए हैं A, B एंड C और यहाँ ये ग्राफ दिखाया गया है पोटेंशियल एनर्जी और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के बीच में। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई A, B और C में ऐसा कौन सा पॉइंट है जो बॉन्डिंग कंडीशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगा। थिंक ओवर दिस क्वेश्चन फॉर 15 मिनट्स, पॉज द वीडियो एंड देन ट्राई टू रिप्लाई। आई थिंक आपको आंसर मिल गया एंड द आंसर इज बी। एक्चुअली एट पॉइंट ए अट्रैक्टिव फोर्सेज डोमिनेट कर रही है रिपल्सिव फोर्सेज को, एट पॉइंट बी अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्सेज बराबर है एंड एट पॉइंट सी जैसा कि मैंने ऊपर बताया रिपल्सिव फोर्सेज एक बार फिर से डोमिनेट करेंगे अट्रैक्टिव फोर्सेज को। तो पॉइंट बी वो पॉइंट है जहां अट्रैक्टिव फोर्सेज और रिपल्सिव फोर्सेज बराबर है एंड दिस रिप्रेजेंट्स आवर बॉन्डिंग कंडीशन फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयंस मॉलिक्यूल्स और एटम्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयंस मॉलिक्यूल्स एटम्स इज मोर, बेसिकली क्वेश्चन इज मोर स्टेबल। इनमें से किसके लिए मैक्सिमम स्टेबल है, दैट इज अपने पास न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम है, अपने पास प्रोटॉन आयन है H+, हाइड्राइड आयन है और H2 डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो इन चारों में आपने ये बताना है कि किसके लिए इनमें से आयन एटम मॉलिक्यूल फॉर्मेशन जो भी गिवन है इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। पॉज द वीडियो, थिंक फॉर 15 सेकेंड्स, देन ट्राई टू रिप्लाई। आई गेस आंसर आपका आ गया हो। तो एज फार एज आई थिंक द मोस्ट probable answer to this question is option number D, that is diatomic hydrogen molecule। तो जैसे मैं बात करूं न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम की, फिर मैं बात करता हूं H+ की। तो H से
एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी होगी दैट एनर्जी इज व्हाट वी कॉल आयोनाइजेशन एनर्जी, और एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है दैट इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। हाइड्रोजन एटम जिस एनर्जी से बाइंडेड होता है टू द न्यूक्लियस दैट एनर्जी इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो हाइड्रोजन की एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक एटम के लिए। जब हम H+ यानी जब हम इलेक्ट्रॉन एमिट कराएंगे हाइड्रोजन एटम से तो जो एनर्जी देनी होगी दिस एनर्जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्लस साइन सिंपली इंडिकेट्स दैट दिस इलेक्ट्रॉन हैज बीन सेट फ्री फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर मैं हाइड्राइड आयन की बात करूं तो हाइड्राइड आयन के फॉर्मेशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी आई कैन से इट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर हाइड्रोजन एटम। और जब हम कहीं से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं द प्रोसेस इज आयोनाइजेशन एंड द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन डालते हैं किसी एटम में, न्यूट्रल एटम के आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में, तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और ये प्रोसेस होता है एक्सोथर्मिक। तो यहाँ जो एनर्जी रिलीज होगी ये भी तकरीबन -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मैं आपको फैक्चुअल डेटा की बात करूं, तो हाइड्रोजन एटम के लिए H2 मॉलिक्यूल के लिए जो बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी होगी इस पे करेंगे चर्चा कि H2 मॉलिक्यूल के लिए ये बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी जो होती है डेल्टा H फॉर्मेशन फॉर H2 मॉलिक्यूल इज -435 किलो जूल पर मोल। सो दिस इज द हाईएस्ट एनर्जी रिलीज्ड। एंड जैसा आपने आज पहला कंसेप्ट करा, पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो जहां एनर्जी मैक्सिमम लूज होगी उसकी स्टेबिलिटी, जहां एनर्जी मैक्सिमम लूज होगी उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो दिस माइनस साइन रिप्रेजेंट्स एनर्जी यहाँ लूज हो रही है और यहाँ ये वैल्यू मैक्सिमम है, दैट इज आंसर मस्ट बी ऑप्शन नंबर डी। ऊपर वाले ग्राफ में मैं आपको बताऊं, जैसे हाइड्रोजन के लिए ये, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो यही वैल्यू को हम बोलते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी विच इज रफली -435 किलो जूल per mole. So the answer to this question is option D. Then we have the next question. Consider the following statements. इन statements को देखिए। पहला statement, atoms of all elements they undergo bond formation phenomena. Then we have statement 2, bond formation is always accompanied by a decrease in energy. आपके सामने स्क्रीन पर दो स्टेटमेंट दिख रहे हैं। अगर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 करेक्टली एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1, योर आंसर शुड बी ए। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और कोई किसी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, योर आंसर शुड बी बी। अगर पहला स्टेटमेंट करेक्ट है और दूसरा इनकरेक्ट है, ऑप्शन शुड बी सी। एंड डी ऑप्शन तब होगा जब पहला ऑप्शन इनकरेक्ट हो और स्टेटमेंट 2 करेक्ट हो। तो एक बार आप स्टेटमेंट से रीड करें, ट्राई टू आंसर, ट्राई टू राइट इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन। तो थिंक ओवर इट। आई गेस आंसर आपका आ गया होगा। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज बेसिकली स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट whereas स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। नाउ अ नेचुरल क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट क्यों है? तो वी हैव रिटन एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स अंडरगो बॉन्ड फॉर्मेशन फेनोमेना। This is exactly not true. Atoms of all elements they don't undergo bond formation phenomena. क्योंकि this statement is false, this statement is incorrect with respect to inert gases like helium, neon, argon, krypton but not xenon. Inert gases में एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जेनोन जो कंपाउंड बनाता है। तो एक्सेप्ट जेनोन, एटम्स ऑफ ऑल एटम्स जो इनर्ट गैसेज एटम होते हैं एलिमेंट के, दे डोंट अंडरगो बॉन्ड फॉर्मेशन फेनोमेना। सो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 2, बॉन्ड फॉर्मेशन इज अकम्पनीड बाय अ डिक्रीज इन एनर्जी, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो स्टेटमेंट 1 इज नॉट ट्रू फॉर नोबल गैसेज। नोबल गैसेज में भी एक्सेप्ट जेनोन। बेसिकली जेनोन की कहानी ये है, एक बंदा होता था बर्थेलोट, और बर्थेलोट ने एक एक्सपेरिमेंट करा था ऑक्सीजन पे। उसने ऑक्सीजन और हेक्सा फ्लोरोप्लेटिनेट का कंपाउंड बनाया एंड द कंपाउंड फॉर्म्ड वाज
एक कॉम्प्लेक्स बना O2 प्लस PtF6 माइनस। तो उसने एक चीज देखा, ही फाउंड वन थिंग कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो ऑक्सीजन की है इट वाज क्लोज टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ जेनॉन, और ऑक्सीजन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है इट इज रफली 1175 किलो जूल पर मोल, और जेनॉन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है इट इज 1170 किलो जूल पर मोल। तो उसने सोचा कि दोनों की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर है, दे आर इन क्लोज अप्रोक्सीमेशन, सो ही थॉट कि जेनॉन के साथ क्यों ना सेम कंपाउंड बनाया जाए, एंड ही रिपीटेड अ सिमिलर एक्सपेरिमेंट जहां उसने जेनॉन को PtF6 के साथ रिएक्ट कराया, एंड टू हिज सरप्राइज इट फॉर्म्ड द सेम कॉम्प्लेक्स व्हिच वाज क्वाइट स्टेबल इन नेचर। जेनॉन बेसिकली दो टाइप के कंपाउंड्स बनाता है, ऑक्सीजन और फ्लोराइड्स के साथ, मींस जेनॉन कैन फॉर्म ऑक्साइड्स, जेनॉन कैन फॉर्म जेनॉन फ्लोराइड्स, एंड जेनॉन कैन फॉर्म या तो दोनों के साथ, ऑक्सीजन और फ्लोराइड्स के साथ। बेसिकली जेनॉन कैन फॉर्म कंपाउंड्स विथ ऑक्सीजन यानी ऑक्साइड्स बना सकता है, फ्लोरीन फ्लोराइड्स बना सकता है, या दोनों के साथ ऑक्सी फ्लोराइड्स बना सकता है। We have this last question, and this last question is a very interesting question which was asked in JEE Advanced, and it was a very easy question. तो क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा फ्रेंड्स क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन, यहाँ उन्होंने ग्राफ बनाया है, एंड द ग्राफ इज बेसिकली कंसिडर द गिवन फिगर दैट शोज द फॉर्मेशन ऑफ H2 प्लस डिपेंडिंग अपॉन इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस वर्सेज पोटेंशियल एनर्जी कर्व। तो ये सेम कर्व है जो अभी हमने करा, पोटेंशियल एनर्जी कर्व है, वाई पे हमने पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करा है, एंड एक्स पे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करा है। नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो जो पहला ऑप्शन है, जो हमारा पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इज कर्व 1 रिप्रेजेंट्स द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ द सिस्टम फॉर H2 प्लस। तो कर्व 1 अगर मैं बताऊं तो दिस कर्व 1 बेसिकली रिप्रेजेंट्स दैट रीजन जहां रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगी अट्रैक्टिव फोर्सेज को। कर्व 2 वो रीजन होगा जहां अट्रैक्टिव फोर्सेज डोमिनेट करेगी रिपल्सिव फोर्सेज को। जब रिपल्सिव फोर्सेज अट्रैक्टिव फोर्सेज को डोमिनेट करती है, जब रिपल्सिव फोर्सेज अट्रैक्टिव फोर्स को डोमिनेट करती है, ऐसे केस में हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग कंडीशन, और जब अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स को डोमिनेट करेगी ऐसे केस में हम बोलते हैं बॉन्डिंग कंडीशन। सो दिस इज बेसिकली एंटी बॉन्डिंग कंडीशन, एंड दिस इज बेसिकली बॉन्डिंग कंडीशन। ये अलग बात है कि दिस पॉइंट एग्जैक्टली रिप्रेजेंट्स द बॉन्डिंग कंडीशन। आइए देखते हैं आगे ऑप्शंस। कर्व 2 रिप्रेजेंट्स मोस्ट स्टेबल स्टेट फॉर H2 प्लस आयन। ये कर्व 2 मोस्ट स्टेबल स्टेट हो सकता है। कर्व 1 इंडिकेट्स मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन आयन इज फॉर्म्ड। नो, कर्व 1 डज नॉट रिप्रेजेंट बिकॉज इट इज एन एंटी बॉन्डिंग कंडीशन। देन वी हैव द डी ऑप्शन। कर्व 2 रिप्रेजेंट्स एनर्जी लेवल ऑफ एंटी बॉन्डिंग। दिस इज द डायग्राम फॉर बॉन्डिंग रीजन। तो आंसर फ्रेंड्स इसका होना चाहिए ऑप्शन बी। This was the very first lecture on chemical bonding. More lectures to come. Stay tuned to this channel. Do like and subscribe if you like my efforts. Also let me know about your feedback in the comment section. Till then, stay home, stay happy, stay safe.